Hello, dear students, good morning. Students, let's start learning the remaining part of the form number 3rd past perfect tense. Now, in this lecture, first of all, we would like to learn about the tables, okay, which will provide us the details of some words which are chiefly found in the statements of past perfect tense. So bete, study these tables very carefully. Table number first. This is the table number first. When any statement begins with the word before, okay, so we find here the subject. After the subject, we will have to use here simple past tense. Simple past. Okay. Now here in the next part of the statement, bete, we will have to use here past perfect tense, had plus past participle. This is the first table. Example is here. देखो, जब भी कभी कोई स्टेटमेंट, सॉरी मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया गलती से, जब भी कभी कोई स्टेटमेंट इस कंजक्शन से बिफोर से शुरू होती है, तो बेटा बिफोर से शुरू होने वाली स्टेटमेंट के अंदर हमें सब्जेक्ट भी मिलेगा. यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ मिलता है, तो आप सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करें, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें. जनरली वी यूज हियर सेकंड फॉर्म, आई मीन टू से पास्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ओके, एज आई राइट द एग्जाम्पल, बिफोर, okay, the match started. Now as you can see here, I have put here the past form of the main verb, second form. Before the match started, okay, before the match started, the stadium or the rain, anything else, the empires. Now you find here blank space, start. The rain had started. The rain had started. STARTED. The rain had started. इससे पहले कि मैच शुरू हो, बारिश ही शुरू हो गई थी. So now as you can see here, past perfect tense, use of past perfect tense. Okay, bete. Now the second formation in this table, the word is here by the time. By the time. If you find the word by the time in the beginning of any statement, so you will also see here the position of some subject. After the subject, again simple past tense, either the second form, past form of the main verb, or was verb plus third form in passive form, whatever the subject requires. Now again I will tell you the same thing, subject, and after subject had plus third form. Okay, and the remaining part. So I mean to say that table number first provides us this the detail of these two words, by the time and before. देखो, बाय द टाइम और बिफोर दोनों शब्दों का अर्थ होता है हिंदी में. बिफोर का एक अर्थ होता है के सामने, एक अर्थ होता है इससे पहले की. तो बाय द टाइम का भी अर्थ यही होता है, इससे पहले की. तो हम इस टेबल में इसका दूसरा पार्ट ये होता है, यदि हम चाहें तो ये ऐसी भी स्टेटमेंट्स आ सकती है बेटा. यहाँ आपको एक स्टेटमेंट लिखी मिलेगी जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगी. ओके, इफ द स्टेटमेंट्स बिगिन विद द सब्जेक्ट, ओके, एंड यू फाइंड हियर द ब्लैंक स्पेस, एंड द वर्ड बिफोर takes its position here in the middle of this statement, at the center of this statement, before. After before, again you will find here the subject, and sometimes in most of the cases we find here the subject, but in some cases we may also find here in gerundial form, first form plus okay ing. I mean to say first form added with ing. बिफोर के बाद जनरली सब्जेक्ट आता है, यदि सब्जेक्ट नहीं आएगा तो आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिल सकती है डायरेक्ट. तो बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हम कौन सा टेंस प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म. सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस में, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे या फिर वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर ब्लैंक स्पेस.
अब यहाँ आपको वही चीज़ है, देखो बिफोर के जस्ट बाद हमने कौन सा टेंस प्रयोग किया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ भी हमने कौन सा टेंस प्रयोग किया बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बोथ आर द सेम, हमने सिर्फ पोजीशन बदली है इसकी। हमने जिस फर्स्ट जो पार्ट था इस टेबल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में हमने इस कंजक्शन को इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट लगाया, लेकिन हम टेबल नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट यदि हम इसको माने तो सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि हम उसी कंजक्शन को इन द मिडल ऑफ द स्टेटमेंट लगा रहे हैं। तो लेकिन बिफोर के साथ जो स्टेटमेंट कनेक्टेड है यहाँ तक जो कोमा लग रहा है, ये एक पूरी स्टेटमेंट होगी। इस स्टेटमेंट में जो टेंस प्रयोग हो रहा है वो कौन सा रहा है, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस हो रहा है। अब इसके बाद हमने कौन सा टेंस प्रयोग किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अभी पास्ट परफेक्ट टेंस वाली स्टेटमेंट कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, बस यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस यदि यहाँ पर बाय द टाइम आता है तो किसका प्रयोग होता है बेटा, बाय द टाइम का प्रयोग होता है। तो अभी आपको जो है ना किसका एग्जांपल देकर देखता हूँ। देखो जी आ गया द, ओके, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, STATN स्टेशन, बिफोर लगा लीजिए, बाय द टाइम कोई भी वर्ड लगा दीजिए, बिफोर वी गोट देयर या रीच्ड देयर, बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, बिफोर वी रीच्ड देयर, जो भी है। सो बेटा एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैंने यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगा दी, पास्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब रीच्ड, और यहाँ पर आपको कौन सा टेंस प्रयोग किया मिला है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बस तो एक स्टेटमेंट आपको संभावना है कि इस प्रकार की स्टेटमेंट मिलेगी आपको एग्जाम में। तो आप ध्यान रखना बिफोर से पहले कौन सा टेंस प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस। और यदि बिफोर से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है तो क्या करेंगे, बिफोर के जस्ट बाद सिंपल पास्ट टेंस और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फर्स्ट टेबल तो ये हो गई। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टेबल, ओके, टेबल नंबर 2। दिस इज द टेबल नंबर 2, इज ऑल्सो टू बी रिटन बाय एस, ओके बेटा, टेबल नंबर 2। Okay students, let's start reading about the second table, table number 2. But in this table we will read about the word after. यदि कोई स्टेटमेंट आपकी आफ्टर से स्टार्ट होती है, if your statement starts with the word after, this the conjunction, so we should use here the past perfect tense just after the word after, and in the next statement we will use here simple past tense, beta, simple past tense, okay. Only after the same, only after के बाद भी हमें क्या करना है, वही यूज करना है जो मैंने ऊपर बताया है, ओके। यदि आपको यही सब कुछ बीच में मिल जाए, if you find the position of this conjunctions in the middle of the statements, then you will use the, okay, here you find here the word after, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में आपको क्या लगाना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म, ओके। रिमेनिंग पार्ट एग्जाम्पल देखिए बेटे, द टेस्ट स्टार्टेड आफ्टर द सेकंड बेल हैड गॉन। देखो जब दूसरी घंटी लग गई थी ना, उसके बाद में रिक्शा स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे बेटे कि मैंने यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा रखी है, और यहाँ पर आफ्टर के बाद में, ये आफ्टर वर्ड है, आफ्टर के बाद में सब्जेक्ट आ रहा था सेकंड बेल, उसके बाद क्या लगा रहा हूँ मैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। सो इस प्रकार से आपको सब देखना है कि यदि कोई आपको किसी स्टेटमेंट में ये आफ्टर वर्ड मिलता है किसी के बीच में, तो आपको इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, ठीक है बेटे। और इसके बाद लास्ट फॉर्म है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, विच इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन विच वी फाइंड, इन विच वी यूज, आई एम सॉरी, इन विच वी यूज द स्टेटमेंट्स ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस आर फॉर्म्ड विद द यूज ऑफ द हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और उसमें सेंटेंस में फोर या सिंस प्लस फर्स्ट फॉर्म, फोर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग किया हुआ होता है। तो मैं अभी ना आपको जैसे लास्ट फॉर्म बता देता हूँ। फॉर्म नंबर कौन सी है, फॉर्म नंबर 4 है, इसका नाम क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस
NUOUS कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके बेटे, इसमें हम प्रयोग कैसे करते हैं, यूसेज पॉइंट में से इसका यूसेज देखेंगे तो क्या करेंगे, यूसेज में सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ओके, ये इसका यूसेज होता है। नेगेटिव बनाना तो हैड नॉट बीन, इंटरोगेटिव बनाना तो हैड शुरू में लगा दो। और इसके लिए पहचान के लिए क्या वर्ड होते हैं, इसके बाद में यहाँ पर फॉर या सिंस प्लस टाइम दिया हुआ होता है, टाइम दिया हुआ होता है। ओके, एग्जाम्पल में जैसे हम ये कहेंगे द मैन हु हैड बीन लिविंग हेयर इन फॉर द लास्ट 2 years डाइड यस्टरडे, इस प्रकार की स्टेटमेंट आती है इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ द मैन हु हैड बीन लिविंग हेयर फॉर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, द एग्जाम्पल वॉज I had wrongly spoken the word thank you, but the statement could not have been completed by me. बेटा गलती से द थैंक यू वर्ड निकल गया था क्योंकि स्टेटमेंट पूरी नहीं हो पाई थी। एग्जाम्पल जो है ना, यह है द मैन हु हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, ओके, डाइड यस्टरडे। सो नाउ द स्टेटमेंट कंप्लीट्स हियर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग केवल तभी करना है जब आपको इस प्रकार से समय दिया हुआ हो, फॉर या सिंस का प्रयोग किया हुआ हो, और उसमें एक पार्ट पास्ट टेंस का होना जरूरी है बेटा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो डाइड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग रही है, तभी आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। ओके, तो मैं आई थिंक यू विल डेफिनेटली कॉपी दीज ऑल फैक्ट्स इन योर फेयर नोटबुक्स एंड लर्न देम बाय हार्ट। इनको दिल से बिल्कुल कंठस्थ जुबानी याद करना। थैंक यू बेटे। नाउ दिस द टॉपिक द पास्ट टेंस हैज बीन कंप्लीटेड। वी वुड लाइक टू लर्न द नेक्स्ट टेंस, ओके, ऑन सम नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।